with a round of applause. Please give a huge round of applause to the participants. Our first participant is Vani of BCom second year. Good morning everyone. I am Vani from Department of Commerce. Today I am sharing insights on the powerful concept that how interdisciplinary innovation and cross-sector entrepreneurships are shaping India's future, especially through the lens of National Education Policy 2020. National education policy is more than a reform. It's a national vision to explore why this matters, what are its challenges, what are the real So why interdisciplinary innovation matters? Because minds from sciences, commerce, arts and technologies collaborate. So the result will get smarter, problem solving and of greater impact. It lets the entrepreneurs to build smarter, inclusive solutions, scale ideas with empathies and see more and broader possibilities. Now let's talk about cross-sector collaboration. So what does it include? It includes Policy 2020 support this by encouraging real-world engagements from classrooms to communities. Let's see some examples of innovation in action. So first of all, GE Healthcare design child-friendly MRI machines inspired by the theme parks. BMW's iDrive was influenced by the video game controls. Next, James Dyson innovated vacuum technology and eliminates the bees for bat. These examples show that cross-industry inspiration leads to true innovation. So basically, it allows students to combine subjects from different streams, such as art students are going for commerce subject and commerce students are studying sciences subjects in their addition to the regular subject. It also emphasizes inclusive and sustainable growth, encouraging solutions to real-world problems. And of course, there are challenges, as different sectors have different goals. Startups want speeds, corporates want stability, and communication gaps and data pressure. From all of that, the future is collaborative, as together we can innovate, learn faster, smarter, and for all. So it's not merely an option, but a necessity for India's growth. Thank you so much. Next participant. Think a vision. But first, let me ask you something. Wait for a while your presentation. Name? This one? First, let me ask you something. Have you ever imagined a classroom where a science student can choreograph a dance or a farmer's child can launch a startup? Well, that classroom is no longer imaginary. And cross-sector entrepreneurship
realizing NEP 2020's vision. This is not just a title. It's a promise that education will no longer be a path. The NEP 2020 spark. What changed? Let's rewind education to the old breaks barriers, offering skill-based learning, subject freedom, and a bold push for creativity, turning students into innovators, not just degree holders. Next, interdisciplinary innovation. What is interdisciplinary innovation? Now let's see where magic truly happens. When ideas from different streams shake hands. Interdisciplinary innovation means combining different subjects to solve real-life problems. For example, a biology student learning coding can create a fitness band that alerts doctors before a health entrepreneurs by mixing two sectors and making more impact. Skill-based learning, that is, learning by doing. What's the use of learning if you can't do anything with it? NEP knows this. Due to NEP, instead of reading about engines, you build one. And due to NEP, instead of memorizing marketing, you create a brand. Next. Gap year, a pause with a purpose. Sometimes to move forward, we need to pause. NEP introduces the gap year, not just as a dropout, but as a breakthrough. In the break, you can learn by travel, work, intern, or you can even start something new. Next. Now let's see the impacts of NEP in real life. Students are creating businesses at early ages, and because of NEP, colleges are running innovation cells and skill labs. Even they are introducing vocational subjects that make students job ready. Thank you for joining me on this journey from textbooks to toolboxes and from chalkboards to startups. Thank you. Something big happened. A change was announced. A change that will completely reimagine education in India. But let's be honest. At first, many were afraid. Teachers questioned, parents doubted, and students were confused. What is this 5 plus 3 plus 3 plus 4? Will exam disappear? Is this just another promise? But little did we know that this knock on the door was not a threat. It was an invitation to dream, to learn and innovate differently. A very good morning to one and all present here. I am Khushi and today I want to speak on the topic interdisciplinary innovation and cross-sector entrepreneurship. I will start with a quick introduction to NEP 2020. Then dive into interdisciplinary innovation and cross-sector entrepreneurship, its impact in India and Haryana, and then the challenges and the way forward. Let's begin. NEP 2020 was launched on 29 July 2020. And do you know, it was the first major change in last 34 years. And its goal is simple, to shift from rote learning to creative and more practical learning. The vision of NEP 2020 is to make India a global superpower by 2040. Let's break down what has happened so far. In 2020, the policy got launched. In 2021, credit system which allows students to switch their subjects, to switch their institutes without losing marks was allowed.
In 2022, syllabus got changed, and in 2023, there is a mixed match of subjects, like you can read commerce with design. In 2024, there is a push for digital learning and skill development, and in 2025, the first phase is complete. Let's now talk about my personal favorite and the heart of NEP, the power of interdisciplinary innovation. Earlier, we had three forces: science or commerce or arts. But now, it's science and arts, commerce and design, maths and psychology, depending upon your goal. For example, if you want to create a budgeting app, then you need economics and coding. And if you want to open a food business, then you need commerce and marketing. And this is interdisciplinary learning in action, and that's what NEP wants. Us to be an innovator, not an exam paper. But what if students don't want to study? They want to build something, and that's where the push for NEP for entrepreneurship comes in. NEP 2020 is not just about getting a degree. It's about building something meaningful. So now, we don't just say we want to get a job, we create jobs. And that too in multi-sectors like education and fintech, healthcare and AI, and agriculture and tech. For example, MyWays AI is a website that allows students to find their right career path. That's education and tech. A group of students made a drone that detects crop diseases. That's technology meets agriculture. And the best part, the government is funding these changes, like Startup India Seeds Fund, Atal Innovation Mission, PMEGP scheme, Mudra Yojana, and many more are helping students to turn their ideas into business. NEP is not just as a presenter, but as a learner, ready to walk you through the bold new chapter of India's education journey, the National Education Policy. So in this presentation, I will tell you about what is a National Education Policy, how is it a game changer for the country, what are its role in interdisciplinary learning, and what is 1 year gap in it. So before I start my presentation, I would like you all to imagine what if education was like your favorite playlist, where you can choose your favorite song, skip the boring parts, and remix your learning journey exactly how you want. So today, I'm going to show you how NEP 2020 is doing exactly that, breaking the old rules and letting students innovate across disciplines and sectors. So, as we all know, definitely NEP is a game changer for the country. Do you all remember how school used to be about memorizing tons of facts just to pass the exam? That's ancient history now. NEP 2020 says enough. It is about thinking deeply, creating boldly, and learning flexibly. Interdisciplinary learning. Why should we limit ourselves to just one subject? Real life isn't divided into neat boxes. I just want to ask you all, when was the last time you solved a problem with one skill? That is not possible. Let me tell you about a law student who learned data science to fight cybercrime. These aren't sci-fi stories. They are happening right here, right now. NEP lets you mix and match subjects, turning you into a versatile, creative, and unstoppable individual. So, here comes the coolest part. You can take a whole year off from studies. Now imagine you are stuck in a boring movie that you don't want to watch, but you have to finish it. Wouldn't it be amazing if you could just hit pause, go live your own adventure, and come back when you are ready? That is what NEP lets you do. Take a gap year, intern, travel, build a startup, or just break. And guess what? You come back exactly where you left off. That is education designed for humans, not machines. Cross
cross-sector entrepreneurship. So as we all know, India's startup scene is booming, but NEP is that rocket fuel for that boom. It encourages you to combine various sectors to create solution that changes the life. So here are some illustrations of cross-sector entrepreneurship. As we can see in the second image depicts the growth in the agriculture sector. Think about it, a farmer getting paid by an app built by a student who studied agriculture and fintech. That is not a dream, it is happening now, and NEP makes it easier than ever. So have you ever felt what you learned in class doesn't matter but companies won't? NEP hears you loud and clear. It is building bridges, internships, real-world projects, industries, mentors, right into your education. Under NEP, when you graduate, you don't just walk out with a certificate. You walk in ready to win. So to wrap up my presentation, I would just like to say that NEP 2020 combines flexibility, interdisciplinary learning, and real-world skill into one powerful package. It is a revolution. It is not just a revolution, a movement from India to lead the world in innovation and creativity. So that is all about NEP. Thank you for walking through the roadmap of NEP 2020 with me. And the National Education Policy 2020 promotes interdisciplinary innovation and encouraging integration of arts, commerce, humanities to foster critical thinking and students innovate solutions for real-world challenges. So, let us learn interdisciplinary learning, holistic understanding, critical thinking, creativity, contextual learning, and enhanced adaptability. Next slide. So, what is cross-sector entrepreneurship? Cross-sector entrepreneurship combines diverse sector, academia, industry, and government to develop innovative solutions and driving real-world economic growth and social benefits. So, for example, a science student and commerce student create its own startup, combining their skills, which makes business more creative and effective. So, here's the models of cross-sectional entrepreneurship. So, how NEP support this? Industry academic collaboration, promoting innovation, interdisciplinary skill development. Next slide. Here are inspiring examples like Zepto and Grad. So let us talk about Zepto. Zepto is a quick commerce startup, is an inspiring example in India. Zepto started to solve the problem, long wait times for grocery delivery and inconvenience of traditional grocery shop. So, let us talk about the founders of Adit and Kavalya, who are the founders of Zepto. Zepto's solution addresses a real-world pain point, making grocery shopping faster and more efficient. Let us talk about Cred. Cred is the only platform providing timely credit payment with exclusive perks, cashbacks, and credit score tracking. What is the mindset behind the Cred? Reward good financial behavior, insight, promotional financial discipline. The founder Kunal Shah's vision is to create a platform that encourages responsible financial habits and reward users for their credit worthiness. These both stories motivate us for scalable businesses. And here are the various startups in India. In I believe, India's startups will play a significant role in shaping country's economic future. Let's support and celebrate startups, and together let's make India hub for innovation and entrepreneurship. Next. As we implement NEP, let's work together to create a vibrant ecosystem that nurtures talent, promotes inclusivity,
empower students to become the leaders and makers of tomorrow. Because being an entrepreneur is neither a part-time job, it's a full-time and lifestyle. Thank you. Have a nice day. करेंगे कि वो नौकरी ही नहीं कुछ अपना भी थोड़ा सा प्लान कर सके। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको मैंने जवाब दिए, ठीक है। तो हमारा कॉलेज IIC का मेंबर है, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म किया है। जिस कॉलेज में BCA है और जिस कॉलेज में BBA है उसके लिए मैंडेटरी है, उसको उसका पार्ट बनना ही बनना है। और वो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बताता है जो हमें करनी होती है। कुछ मैंडेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ हम अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे टीचर्स उसके मेंबर हैं, हमारे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स भी उसके मेंबर हैं, ठीक है। जो यहाँ बैठे भी हुए हैं बच्चे, अब क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, धीरे धीरे हम आपको ऐड आउट करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप सभी को रेडी रहना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है उन एक्टिविटीज़ में, क्लियर है सभी को। और आप खुद आकर दोगे कि मैम हमारा नाम उसमें ऐड कीजिए, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है। गवर्नमेंट ये कहती है कि धीरे धीरे नौकरियाँ कम होती जाएगी, हमें अपने लिए अपने बिजनेसेस को जनरेट करना है, इवन लोगों को नौकरियाँ देनी है। तो हमें किस तरह का बच्चा बनना है, ठीक है। और हमें क्या करनी है, इनोवेशंस करनी है। जैसे सेफ्टी, ऑटो में आते हैं हम, सेफ्टी नहीं है, उसके लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है कि सेफ्टी नहीं है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, किसी के दिमाग में कुछ आइडिया है? मैम ने आइडिया देगा, हम क्या कर सकते हैं गर्ल सेफ्टी के लिए सेफ्टी ऐप बना सकते हैं। BCA के बच्चे हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम आपको पढ़ाएंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे लैंग्वेजेस सीखेंगे, छोटे छोटे मॉड्यूल्स, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे मॉड्यूल्स। वेब डिज़ाइन बनाओगे, वेबसाइट बना सकते हो, जैसे कहते हैं ना 112 पे कॉल करो, सर्विस अवेलेबल है। किस तरीके से क्या इम्प्लीमेंट करें, इसके साथ हम क्या कनेक्ट करें, सो दैट हमें एक सॉल्यूशन मिले अपने लिए, ठीक है। BCA का बच्चा उस दिमाग से सोचेगा, BCom का बच्चा अपने माइंड को एक्टिव करके सोचेगा क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है। BA का बच्चा वो भी सोच सकता है। तो ये आपके पास लिमिटेड नहीं है, ठीक है। तो IIC इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल जिसके हम मेंबर हैं, क्योंकि हमारे पास BCA है तो हमारा कॉलेज उसका मेंबर है, तो क्वेश्चन सोच के रखिए। जब सर आएंगे बात करेंगे आपसे। सर वो आ रहे हैं जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में NEP को इम्प्लीमेंट कराते हैं, तो आप उनसे अपने सवाल पूछ सकते हो, सर क्यों बनाई है NEP, पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम थी। तो जो भी सवाल मन में आते हैं सोच के रखिए, तब पार्टिसिपेट करिएगा, ओके। जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, वो हिंदी, इंग्लिश या दूसरे आर्ट्स के सब्जेक्ट को क्यों पढ़ाया जा रहा है ना, आपको क्या NEP रीज़न पढ़ा रहे हैं, तो ये सब सवाल आप पूछ सकते हो, अपने सवाल सोच के रखना, ठीक है। Celebrate the power of education with 5 years of NEP implementation. Education makes the country stronger and provides employability to all. To speak more on entrepreneurship skills, a pathway of employability, we have Dr. Jaswinder amongst us today. Please give him a huge round of applause. First of all, I request Principal Ma'am to please formally welcome Sir by presenting a planter. तालियां बजती रहे। Thank you, ma'am. Thank you, sir. I also extend a hearty welcome to Mr. Sunny from MyScale University. Thank you for being here. Okay, sorry. I request ma'am to please present a folder to sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. The speaker of the day. Senior faculty members, I am feel very proud to
in this occasion to discuss, not to present myself, but to discuss a very important topic, which is important in the sense of Indian economy. Although my topic is employability skills, and now I have observed it is innovation and entrepreneurship, aligned with NDP 2020. So I congratulate all of you that you got admission in DAV Girls College, because it is a premier institute, and I never think of in my life that I would be a resource person in DAV Girls College Yamunanagar. It means when I entered in this college, either to draw my wife or to become my wife, I feel proud. इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतने बिल्डिंग्स हैं, इतने कोर्सेज चल रहे हैं, और मुझे मैडम कमलेश का भी जो कार्यकाल था, उसके बाद जो मैडम आर्य का भी है, और मैं तभी से देख रहा हूँ. और पर्सनली आई मेक दिस स्टेटमेंट फ्रॉम दिस डायस, इट्स मच बेटर एज कंपेयर टू द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स, मच यूनिवर्सिटीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन जितनी फैकल्टी और जितनी फैसिलिटीज़ और इनोवेटिव कोर्सेज एफिलेटेड कोर्सेज में हम नहीं चला पाते. कुछ गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशंस हैं, स्टाफ की प्रॉब्लम्स हैं, रिसोर्सेज की हैं. सो थैंक्स टू द प्रिंसिपल मैडम गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटीज टू शेयर माय आइडियाज ऑन a very important topic, innovation and entrepreneurship. Everyone talk about entrepreneurship. And one of the guys is from the private skill university is also sitting here. And when I came to know that he is special in IT, so that was what contents I would present in this seminars, so that it will be very valuable to all of you. Innovation, or all of you are comfort in English or Hindi? Yeah, in English. In English is better. In English. अगर वो connect हो गया तो मुझे दे दो please. NDP 2020 के options. नहीं, आप इसमें जाओ, supplements में जाओ, last में आप लोग skip पे. So most of the students are from first year? Yes, sir. Not from second year or third year? अभी second year, final year बहुत ज़्यादा आई है. First year, it is the right times to make up your mind to add entrepreneurship or in this industrial area. Yamunanagar is famous for some kind of the industries, and I am so happy to have one of these gifts created by one of the students in this college. ये सब बड़ा रेयरली होता है, क्योंकि ना इनोवेशन यहीं से तो शुरू हो रही है. इसने भी ये बनाया है डॉक्यूमेंट्स कंटेंट्स का, रेयरली वो इनोवेटिव स्टूडेंट्स तो है ही है. और आई प्रे टू गॉड एंड आई एश्योर हर दैट कि वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स बनेगी कि अगर इस पैशन को अपना प्रोफेशन बना दे. ऐसे ही एक बार ऐसा हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज अम्बाला में, तो आई स्पॉक विद द प्रिंसिपल. सो वो किसी प्रोग्राम के लिए इनवाइट करने आए थे प्रिंसिपल को, और इतना सुंदर इन्विटेशन कार्ड मैंने जिंदगी में नहीं देखा. उस स्टूडेंट से पर्सनली मिला कि इस पैशन को प्रोफेशन बना. देयर इज ए लॉट ऑफ स्कोप. तो पहले जिस स्टूडेंट्स ने ये बनाया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद. सर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फैशन डिजाइनिंग बना रहा है मैडम मंजीत, उसकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट. कांग्रेचुलेशन. गाइडेंस में बने. So, innovation and entrepreneurship. इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, हालांकि NEP 2020 कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये NEP 2020 के बाद इनोवेशन होगी या एंटरप्रेन्योरशिप होगी. ये तो हमारी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, बहुत आउट कल्चर इंडिया. वो तो आप मान लो कि जब से ब्रिटिश एम्पायर शुरू हुआ
सबसे ज़्यादा सर्वनाश से जो काम किया वो ब्रिटिश लोगों ने किया, हमें एंटरप्रेन्योर से जॉब की तरफ कन्वर्ट कर दिया। हमारे दिमाग में एक डाल दिए कि जॉब करनी है, क्योंकि उन्होंने जॉब्स के लिए हाई सैलरी डिसाइड की है। दैट वाज एक नाम मैं बहुत सुनता आया हूँ, प्रोफेसर मेकाले, प्रोफेसर मेकाले। आगे आज तक हम उसको ब्लेम कर रहे हैं, हम अपने जो पॉलिटिकल्स इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी ब्लेम कर रहे हैं। प्रोफेसर मेकाले बहुत पहले चला गया बोलते थे, जॉब तो नीमन आती थी। तो एनी हाउ आज से जो कंसेप्ट है, बिकॉज गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट some kind of its programs, because of we have their dreams. The Bharat will be Viksit Bharat in 2047 when we will celebrate the 100 year of independence. उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि विकसित भारत कैसा होगा, ये हम सबको ही सोचना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कहने को देशभक्ति है, लेकिन हम देश के बारे में सोचते ही नहीं। अब देखो, means that if I think about myself, अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन एक डर मन में ये है कि अगर पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन है, उनको डायरेक्टली और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में नहीं ले जाया जाएगा, तो ये अगर दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए हैं ये, तो वो मेरे लिए भी नुकसानदायक होगा। एक दिन कोई आएगा, मुझे गन पॉइंट पे उठा के ले जाएगा, या कोई चिट्ठी मेरे घर भेज देगा, आपके बेटे का किडनैप कर लिया गया है, 50 लाख रुपए दो, सारी जिंदगी की कमाई एक झटके में ले जाएगा। मुझे ऐसा समाज नहीं चाहिए। तो फिर ये मेरा भी कर्तव्य बनता है कि अगर समाज नहीं चाहिए तो आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हो, आप तो कंट्रीब्यूट करो। तो बीइंग ए टीचर की हमेशा कोशिश रहती है कि बच्चों को सही गाइड किया जाए कि फैक्ट ये है, जो आप सोच रहे हो वो फैक्ट नहीं है। वैसे विकसित भारत के लिए हर एक संस्था को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को सोचना चाहिए कि हमारा जो विकसित भारत होगा, इकोनॉमिस्ट तो बोलते हैं कि $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स उनके अपने ड्रीम्स हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उनके अपने ड्रीम्स हैं, लेकिन वो प्रॉपरली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ये विकसित भारत की रूपरेखा कैसे, सारे सब देशी हमारे देश में बने हुए थे। जो पाकिस्तान ने जो यूज किया वो सारे चाइनीज थे, और वो एक भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया। और हमने कहते हैं ना कि ना एक इंच इधर और ना एक इंच इधर, जहाँ टारगेट था वहीं पे हिट किया, क्योंकि हमारे पास अपनी टेक्निक, अपनी टेक्नोलॉजी। तो डिफेंस को भी सोचना चाहिए कि विकसित भारत में क्या होगा। लेकिन बीइंग ए टीचर्स और स्टूडेंट्स से कंसर्न नहीं है कि विकसित भारत में तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो संपूर्ण रोजगार होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड होगा गरीबी मुक्त भारत। तो कहते हैं कि अगर सबको रोजगार दे देंगे तो फिर गरीबी मुक्त हो जाएगा भारत। बड़ा बुरा लगता था जब हम ये सुनते थे कि हमें ब्रिटिश लोग सपेरों का देश बोलते थे। हम सब ये डिस्कशन में करते थे कि ऐसा क्यों बोलते थे हमें, तो बहुत कुछ चीज़ें सामने आई थी। लेकिन बुरा तो लगता है ना कि हमें सपेरों का देश सपेरा बोला जाए, थोड़ा फील तो होता है, हम ऐसे थोड़ी थे। और समृद्ध भारत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें विकास करना है, विनाश नहीं करना। यूरोप के देशों ने विकास तो किया लेकिन विनाश नहीं किया। एनवायरमेंट्स जो प्रॉब्लम्स है वो ड्यू टू द यूरोपियन कंट्रीज। जितने डेवलप कंट्रीज थे, अमेरिका जैसे देश थे, उन्होंने विनाश किया, विकास नहीं किया। उन्हें अब जो है, आज भी वो, मैं सुबह न्यूज़पेपर देख रहा था, तो आज भी ट्रम्प ईरान को धमका रहा है कि अगर आपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने बंद नहीं किए तो डायरेक्टली अटैक किया जाएगा। ये रूस, यूक्रेन का यूज, इजराइल का यूज, ये सारा एनवायरमेंट पॉल्यूशन कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा विजन है, SDG जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, हम 0 कार्बन जो विसर्जित होती है उसको 0 लेवल पर लेके आएंगे। तो हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें संपूर्ण रोजगार उपलब्ध कराना, गरीबी मुक्त भारत बनाना और जो समृद्ध भारत। जब संपूर्ण रोजगार की बात करते, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की बात करते तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, सरकारी नौकरी। एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन आप देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट इन विच इंडिविजुअल रिसीव ए सैलरी एंड बेनिफिट फ्रॉम एन एम्प्लॉयर फॉर परफॉर्मिंग द टास्क और वर्क असाइन्ड टू देम, टिपिकली अराउंड 40 आवर्स इन अ वीक ऑन रेगुलर बेसिस। इसको हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट जिसमें इंडिविजुअल को आवश्यकता के अनुसार बुलाया जाता है, जिसमें हम कैजुअल एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं।
यही हमसे एक गलती हो रही है कि हम एम्प्लॉयमेंट को सरकारी नौकरी मानते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। जब तक सरकारी नौकरी, एम्प्लॉयमेंट का जो सरकारी नौकरी है, तब तक संपूर्ण रोजगार होगा ही नहीं। विकसित भारत के लिए $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए और इसके लिए ऑन एन एवरेज 10% का GDP ग्रोथ चाहिए। और हमारा देश है 6.5% ग्रो कर रहा है। GDP जो है वो 6.5 ग्रो करती है। सर्विस सेक्टर तो 7 to 9 भी कर रहा है। लेकिन आगे की अगर इतना ग्रो करने के बाद भी मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट में हमारा देश तीसरे स्थान पर है। साउथ अफ्रीका पहले पे है, स्पेन दूसरे पे है और इंडिया तीसरे पे। 9.2% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट को सरकारी नौकरी मानोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों है? इसका पिक्चर आप देखिए। मिसकंसेप्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि अगर गुड गवर्नमेंट जॉब या कॉर्पोरेट सेक्टर जॉब इसको मानते हो कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब एक अच्छी सरकारी नौकरी या अच्छा कॉर्पोरेट हाउस में जॉब लग जाए रेगुलर बेसिस पे। अगर आप इसको गवर्नमेंट जॉब मानोगे तो इसके पिक्चर देखिए। सरकारी नौकरी अगर एम्प्लॉयमेंट है, कितनी सरकारी नौकरी है गवर्नमेंट सेक्टर में? तो 2 to 2.5% टोटल जॉब सारी। टोटल वर्क फोर्स अगर डाटा दिए जाए, टोटल वर्क फोर्स इंडिया में 37 करोड़ जो लोग हैं वो 15 से 29 ईयर के बीच के, जिसको हम यूथ बोलते हैं। 2009 में इंडियन यूथ पॉलिसी आई थी जिसमें कहा गया था कि 15 से 29 साल के बीच का जो बच्चे हैं उनको हम यूथ बोलते हैं। और आज हम इंडिया को यूथ कंट्री नहीं बोलते क्योंकि जो मेजर पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, वो इंडिया में ही है। कहने को बड़ा अच्छा लगता है। अमेरिका, स्पेशली हम चाइना की बात करें, हम जापान की बात करें, हम सिंगापुर की बात करें, ये देश ना डिक्रीजिंग स्टेज पे पहुंच गए हैं क्योंकि इनमें जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ओल्ड एज पॉपुलेशन है। आप मानोगे जापान में 35% जो बिजनेस है वो बंद हो गए हैं। 25% लोग जो हैं जो बिजनेस कर रहे हैं उनका जो इंटेंशन है जस्ट टू पास द टाइम। जैसे हम सोच लेते हैं ना कि 4 साल के हो गए बस अब क्या काम करना है, वो इनोवेशन नहीं है। और वहाँ जो मिडिल एज है वो 49 है और इंडिया में तो 28 मिडिल एज। तो गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है 2.5 और टोटल जॉब कॉर्पोरेट सेक्टर का 7 से 8% है। तो टोटल कैजुअल एम्प्लॉयमेंट है 12 से 15%। ये टोटल एम्प्लॉयमेंट आप टोटल मान के चले तो ये 24-25% के आसपास है। अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ये पिक्चर देखो। अभी 26-27 को सेक्टर पेपर हुआ, ठीक है ना? तो उसमें देखो कितने कैंडिडेट थे। 3.47 लाख पोस्टें कितनी हैं? 30,000। ये तो स्टेट लेवल का डाटा है और ग्रुप सी का डाटा है, ठीक है ना? तो बच्चे बोलते हैं कि सर हमने थोड़ी करनी है ग्रुप सी। अच्छा कोई बात नहीं, ग्रुप ए का डाटा देख लो और नेशनल लेवल का डाटा देख लो। यूपीएससी का डाटा आप देखो। 10 लाख कैंडिडेट अपीयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 25। However, only 5 to 6 lakh candidate actually appeared. There were 979 vacancies. 979 वैकेंसीज के लिए लाखों लोग अपीयर हो। देखो मैं नहीं कहता कि नई नौकरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बड़ा दुख आता है। और कई बार मैं सरकार को भी क्रिटिसाइज करता हूँ, सोचता हूँ ये कर क्या रहे हैं। एक बच्चा 28-29 साल तक यूपीएससी की तैयारी कर, अगर उसमें वो फेल हो गया तो उसके पास कोई स्किल नहीं है। तो इसका नॉलेज तो है लेकिन वो नॉलेज इंफॉर्मेशन बेस्ड है, लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्किल बेस्ड। अगर एक बच्चा जगह फेल हो भी गया कोई बात नहीं, उसके पास स्किल है, वो कोई दूसरा काम कर लेगा। कहीं ऐसे जो इस एज पे आके कहीं कुलीग से जब बात होती है तो बड़े फ्रस्ट्रेटेड है। छोटा बेटा तो सेट हो गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, बड़ा बेटा तो बीटेक करने के बाद यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पिछले 5 साल से कुछ हो ही नहीं रहा, 2 नंबर से रह जाता है, 3 नंबर से रह जाता है। आप उन पेरेंट्स को मैं अगर डायरेक्टली उनसे बात करूँ तो बुरा भी मान जाते हैं,
लेकिन ये भी सोचना चाहिए ना कि आपके बच्चे के पास कोई स्किल है ही नहीं है, उसके पास नॉलेज तो है लेकिन ये इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज है, स्किल नहीं है, इसलिए आप फ्रस्ट्रेटेड। पहले कहते थे लोग कोई फर्क ही नहीं पड़ता था बुजुर्गों को, फेल हो गया कोई बात नहीं अगले साल कर लेना, लेकिन वो साल उसको स्किल भी देते थे। और एक बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसका डाटा भी बड़ा शॉकिंग है। ये देखो कितने आ जाते हैं, इसमें तो करोड़ों में चली गई होगी बात ना, 1 करोड़ है ना, देखो 82,000, 8 लाख का 82 लाख के बाद 2,400 पोस्ट है कितनी है, 32,438 वैकेंसी अवेलेबल इन वेरियस लेवल। अगर ये डाटा उन लोगों के लिए जो बोलते हैं ना गवर्नमेंट जॉब, अगर गवर्नमेंट जॉब सोचने का कारण है, गवर्नमेंट जॉब तुम्हारा कसूर नहीं है, हमें भी ऐसे सिखाया गया था। गवर्नमेंट जॉब एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक आदमी, राजाओं के समय की बात है, एक आदमी कहता रहता था एक बार सरकारी नौकरी लग जाए बस फिर देखना मैं क्या करता हूँ। हर बाबू की बात कहता था सरकारी नौकरी लग जाए तो फिर देखता मैं क्या करता हूँ। ये बात ट्रैवल करते करते राजा के कानों में पहुंची, ये व्यक्ति ऐसे सब बोलता है। उसने मंत्री से पूछा यार ये करेगा क्या? मंत्री ने उसको सलाह दी है कि सर ऐसा है कि पब्लिक डीलिंग वाला कोई काम नहीं लेंगे, फिर क्या कर लेगा ये? उसको दरबार में बुलाया गया, कहता भी क्या कहता रहता है, कहता जी एक बार नौकरी तो दो फिर दिखाओ मैं क्या करता हूँ। तो मंत्री की सलाह के अनुसार राजा ने इसको काम दिया कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रात को तारे गिनने हैं और सुबह दरबार में रिपोर्ट करना और कुछ नहीं करना। कहता जी ठीक है, बड़ा खुश होके गया। राजा ने मंत्री की तरफ देखा, यार ये तो अब भी खुश है। मंत्री कहते चलो देखते हैं क्या करता है। उस व्यक्ति ने कुछ दिन ईमानदार से काम किया, तारे गिनता, सुबह दरबार में रिपोर्ट करता जी आज मैंने 1000 तारे गिने, आज मैंने 2000 गिने, 3000। हफ्ते 10 दिन के बाद, महीने के बाद उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, एक सेठ की हवेली के पास जाके खड़ा हो गया। सेठ को बोला हवेली हटा। सेठ बोलता है क्यों? कहता है भाई राजा का आदेश है, तारे गिनने हैं, तेरी हवेली बीच में आ रही है, मुझे तारे दिख ही नहीं रहे। सेठ बोलता है या तो साइड में होकर गिन ले, कहता है नहीं यही खड़े होकर गिनूंगा, हवेली हटा। अब सेठ कहता है कि राजा का आदेश था। सेठ बोलता है यार कुछ ले लेके हो जाएगा, बोले हाँ ला दे। उससे 10 सरफियाँ ली, थोड़ा साइड में होकर तारे गिनने शुरू कर दिए। आज 1 सेठ, कल 2 सेठ, कल 5 सेठ, उसने टोना शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट जॉब में भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है, ऊपर की कमाई जुड़ी हुई है और सेफ एंड सिक्योर है। तो मुझे तो बात है, IAS ऑफिसर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेडी IAS ऑफिसर है, वो ड्यूटी पे नहीं आती, कई महीने तक ड्यूटी पे नहीं आई है, कंप्लेंट हुई है, कुछ हुई है, सरकार उसको हटा ही नहीं पा रही है। अभी मेरे ख्याल से उसको कुछ छुट्टी पे भेज दिया, कुछ भेज दिया, कुछ लीगल कुछ इश्यूज आते होंगे, तो सरकारी नौकरी लग जाए एक बार बस। कुछ तो हमारे जो स्टूडेंट्स से जब मैं बात करता था, 2 साल पहले बोलते थे सर तनख्वाह भी ना दो, बस सरकारी नौकरी दे दो। अरे बिना तनख्वाह के क्या काम करोगे? सर पुलिस की नौकरी दे दो ना, तनख्वाह भी नहीं देंगे, तनख्वाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब पैसे कमा लेंगे। इसलिए हम सरकारी जॉब चाहते हैं। अगर देखो सरकारी जॉब करनी है फिर तो जो मतलब बेरोजगारी की दर जाती है। मुझे एक डाटा मिलता है, जाके अखबार में मैं पढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश में 62-84 की रिक्त भर्तियां निकली है। 62-84, 93,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 3700 तो PhD होल्डर थे, 5,000 ग्रेजुएट थे, 28,000 +2 पास थे और इसकी क्वालिफिकेशन 5वीं पास थी। ग्रुप डी हरियाणा में तो बड़ा फेमस हो रहा है, जिसमें माली की, चौकीदार की, 55 से यूपी का ही डाटा है, ये मई 23 का डाटा आया हुआ है, 55 लाख से भी अधिक आवेदन आए ग्रुप डी के लिए भी। और इन नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के पास BTech, MTech, MBA, MS। मुझे ना वो 3 इडियट का एक सीन याद आता है जिसमें उसको गधा बोला जाता है। Have you seen it? कि गधा नहीं तो और क्या है?
पहले बीटेक किया, फिर बैंक में नौकरी के लिए MBA किया। अगर बैंक में नौकरी करनी थी तो बीटेक काहे को किया? अगर PhD करनी थी तो चपरासी के लिए की थी क्या? कहीं ना कहीं स्किल्स की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी है। तो फिर ऐसे लोगों का हाल पता क्या होता है? ग्रुप डी में जब भर्ती की गई है, एक जो अम्बाला के किसी स्कूल्स का एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल है, वो गेस्ट टीचर लगा हुआ है, मैथमेटिक्स में गेस्ट टीचर लगा हुआ था अम्बाले में। उसने ग्रुप डी पास किया, ग्रुप डी में सिलेक्शन होगी। अनफॉर्चुनेट उसी स्कूल में इसकी पोस्टिंग आ गई है, चौकीदार के रूम में, टीयर के रूम में आ गई है। अब पहले तो गेस्ट टीचर था, टीयर को बोलता था पानी पिलावे, चाय लेके आवे, ये वो। अब दो उसको बोलते हैं, अब उसको लगता है, फील होता है देखो टीचर रहा, ठीक है ना। तो उसने प्रिंसिपल से बात की, सर मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ तो बहुत बेइज्जती होती है। तो टीचर, कुछ तो टीचर जानबूझ के मुझे तंग करते हैं। तो प्रिंसिपल अच्छे आदमी थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मैं आपको ना एडिशनल सब्जेक्ट दे दूँगा, आप पोस्ट पे ही रहोगे, ठीक है ना, लेकिन आपको मैथमेटिक्स टीचर भी रखूँगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो प्रैक्टिस जॉब को छोड़ के चला गया। तो ये गवर्नमेंट जॉब का जो मोटिवेशन है इसके पीछे की सेफ्टी सिक्योरिटी तो मिलती है, भ्रष्टाचार का पैसा भी आता है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब के सहारे हैं तो फिर ये डाटा देखो आप कि आप अकेले नहीं हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए लाखों लोग बैठे हैं आपका नंबर। और दूसरा, UPSC का सक्सेस रेट 1 to 2% है। उसके बाद क्या करोगे? ये डाटा। अच्छा, दूसरे उसमें कहा गया था कि मिसकंसेप्शन में कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का मतलब गवर्नमेंट जॉब, ये डाटा आपने देख लिया। दूसरा मिथ हम क्या मानते हैं, गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट कहाँ से दे देगी? आपका जो मैं डाटा दिया, अगर ये गवर्नमेंट द ऑनर्स ऑफ द प्रोवाइडिंग जॉब इज ऑफ गवर्नमेंट, अगर आप ये मानते हो कि तो सरकार का काम है, सरकार कहाँ से दे देगी? ये डाटा देख तो रहे हो, हर साल हर महीने का डाटा है 9 लाख, टेंटेटिव से डाटा है। हर साल का डाटा है लगभग 1,20,00,000 जो लोग हैं वो जॉब मार्केट में आते हैं। 18 साल की उम्र पार करने के बाद वो जॉब मार्केट में आते हैं। आप खुद ही सोचो कौन सी गवर्नमेंट है जो करोड़ों लोगों को रोजगार दे। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री ने एक PLI स्कीम जो है रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू की है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। उसका भी 2 साल का जो टारगेट है, 2 साल का टारगेट है 3.5 करोड़ जॉब्स को जनरेट करने का, 2 साल का है। अब वो कब होगी ना होगी ये किसी को नहीं पता। आप खुद सोच के देखो कि 1,20,00,000 लोगों को कौन सी सरकार रोजगार देगी? मांग लो सरकार से, मांगा दिया कई लोगों ने। डीप रूम में रोहतक में एजुकेशन देखा था, लोगों ने टेंट लगाए, तंबू लगाए, रोड जाम किया। सरकार ने क्या किया? लाठी चार्ज किया, अच्छी खासी तसल्ली किया कर। ये सरकार का काम होता ना। बेचारे वो गेस्ट टीचर हैं, वो पीट पटा के हेड जाते। सरकार की मजबूरी है, सरकार नहीं दे सकती। और जो तीसरा मिथ है, गुड जॉब कैन बी ऑब्टेन्ड इन द एज ऑफ 20-25, जो भी 25 साल में है। हमारे भी यहाँ पे हैं बच्चे हैं, हमारे घर में भी रिश्तेदारों के बच्चे हैं, वो तैयारी करनी है। जो भी 25 साल से पहले कौन नौकरी करता है? अब नौकरी इसको मिलती है जो क्वालिफाइड होगा, ठीक है। बात सर UG डिग्री या PG डिग्री की होगी, एम्प्लॉयमेंट स्किल की बात करते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि जो भी 25 साल के बाद नौकरी मिलती है, ये डाटा देखिए, ये गेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया तिलक मेहता 13 साल का बच्चा है। ऐसा नहीं है जो भी 25 साल के बाद ही रोजगार मिलता है। रोजगार अगर आप में स्किल है तो आपको रोजगार तो बहुत कम एज की उम्र मिलता है। वॉरेन बफेट का नाम, जो USA का इन्वेस्टर्स है, अमीर आदमी में उसका नाम आता है। उसके बारे में कहा गया था 11 साल की उम्र में उसने पहली इन्वेस्टमेंट की थी। तिलक मेहता सिंपल सा लड़का, 13 साल का कितना बेटर। उसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। छुट्टियों में अंकल के घर गए, मुंबई का रहता था, अंकल के घर गए, वहाँ कुछ किताबें भूल गया जो बहुत जरूरी थी। अब अंकल बोलता है नहीं मैं तो ड्यूटी पे हूँ, आज तो मैं किताबें नहीं दे सकता, 2 दिन में नहीं आ सकता। पेरेंट्स कहते जी हमें भी टाइम नहीं है। पार्सल वाले से कहा, उसने बहुत सारा पैसा मांगा,
किताबें जरूरी थी, सोचा काश ऐसा होता, कुछ तो होता कि मुझे किताबें चाहिए और 10 मिनट में मुझे किताबें मिल जाती, आधे घंटे में मुझे मिल जाती। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, बम्बई में डिब्बे वाला कंसेप्ट बड़ा अच्छा, जो लंच के डिब्बे फ्लाई करता है, उनसे टाई अप करके इस बच्चे ने लॉजिस्टिक चेन खड़ी कर दिया। 10 मिनट में कोई सामान पूरा कुछ नहीं मंगवा रहा, और उसका नाम रखा है पार्सल, पेपर एंड पार्सल कंपनी। आज की डेट में 100 करोड़ रुपए का बिजनेस है इस लड़के का। 17 साल का लड़के आज 100 करोड़ कमा लेंगे। तो ये बात भूल जाओ कि रोजगार 24-25 साल के बाद ही मिलता है, नहीं मिलता। रोजगार तो 11 साल का बच्चा भी करता है, 13 साल का बच्चा भी करता है। और जो ये कहते हैं कि रोजगार अच्छी डिग्री के बाद अच्छा रोजगार मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, सतीराम यादव का BTW ब्रांड है, दिल्ली में बड़ा फेमस है, प्रीतमपुरा में। इसको आप बोलते हैं बिट्टू टिक्की वाला। सतीराम यादव और इसका भांजा था साथ में, इसका शंकर था, दीपांशंकर नाम था। तो ये टीचर थे यूपी में, लेकिन इनके दिमाग में पूरा बाती दिमाग था, कुछ नया करना था, नया करना था। सारे गांव में इनको मास्टर जी बोलते थे, मास्टर जी बनना है, ठीक है ना। तो कई बार जो मास्टर जी वाला जो कंसेप्ट आता है, तो कई बार मतलब फील होता है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट ये भी जाता था कि शुरू में जब शादी हुई है, इन लॉज के गए हुए थे, तो आप किसी बुजुर्ग ने कह दिया कि मास्टर जी भी आ गए। टाइम तो हम लेक्चरर थे, कॉलेज में पढ़ाते थे, ठीक है। मास्टर जी वाला तर्जुमा जो है ना, ये बात बहुत अच्छा गाँव के लोग लगाते ही हैं। देखिए, एक बार मैंने जो हमारे वाइस चांसलर रहे भीम सिंह दैया जी रहे हैं, एक बार उनको भी सुल्तानपुर से भी पूछा, कहता है कि वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के गांव में चले गए। गांव के लोग तब भी बोलते थे, अरे में अभी मास्टरी है, कुछ और बढ़ गया। तो इसको भी ऐसा लगा, सतीराम यादव को भी ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ करना है। दिल्ली आया, टिक्की बनाता था, 2 रुपए की टिक्की बनाता था, लेकिन ये क्या करता था, ये कस्टमर से फीडबैक करता था, आपको अच्छी लगी, इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, है ना। आज इसके 240 से ज़्यादा रिटेल स्टोर है फूड के दिल्ली में। तो ये कोई MBA नहीं था, ये इसको प्रोफेशनल डिग्री इसके पास नहीं थी, कुछ कोई फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड नहीं थी। ऐसा नहीं है कि अच्छी क्वालिफिकेशन के बाद ही या फैमिली जो बैकग्राउंड है वो ही बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस तो कोई भी कर सकता है। तीसरा जो कंसेप्ट है कि नितिन वार्ष्णेय का है, मीन्स दैट ये नितिन वार्ष्णेय का कि एंटरप्रेन्योर विदाउट प्रोफेशनल डिग्री। नितिन वार्ष्णेय आपको वो 17 साल का बच्चा हो, ये कहना कहता है, ये जो ऑल्सो बिलोंग MP से बिलोंग करते थे, इनका BMW का ब्रांड है जो ग्रीन स्पाइस बनाते हैं। तो इसके बड़े भाई का सपना था कि मुझे ना अपनी कंपनी बनानी है। अनफॉर्चुनेटली ब्रेन हेमरेज उसकी डेथ हो जाती है। 11 साल में इसने अपने पिता को कहा, 13 साल में, कि ना भाई का सपना पूरा करना है। और उस समय ये 11th क्लास में है, मुझे अपने भाई का सपना पूरा करना है, ग्रीन स्पाइस ब्रांड खड़ा करना है। तो घर वालों ने भी इसको सहयोग दिया, और आज आगे जो 470 करोड़ की टर्नओवर है, आज 11वीं का बच्चा जुनून था कि मुझे अपने भाई का सपना पूरा करना है। तो ये भूल जाओ कि नौकरी जो है 24-25 साल के बाद मिलेगी। नौकरी के लिए जो बैकग्राउंड होनी जरूरी है या प्रोफेशनल डिग्री होनी जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, जॉब के बारे में ये वेल नोन फैक्ट अबाउट द जॉब। अभी भी जिनकी समझ में नहीं आया कि जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको माइंड सेट जो है वो रिफ्रेश कर देता हूँ। जो मैं, क्योंकि मैं खुद एक लाइव एग्जाम्पल, जो अच्छी खासी नौकरी करते हैं, अच्छा खासा पैसा भी है, लेकिन एक दिल में दर्द भी है, टेंशन। देखो, नौकरी करोगे, कोई भी नौकरी इक्वल प्रोपोर्शन में पैसा नहीं देती जितना समय लगाता है। 9 से 5 का कहने को आता है, लेकिन इंडिया में 9 से 5 की नौकरी नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर में तो 12-12 घंटे की जॉब है, लेकिन उतना पैसा नहीं मिलता जितनी आप टाइम लगाते हो। एक दुकानदार यमुनानगर में तो स्पेशली कहा जा सकता है 10 बजे तक तो मार्केट रहती है। आप यमुनानगर में रहे हैं, 6 साल तक रहे हैं, तो कई बार इस बात पर बड़ी चर्चा होती है, बहस भी होती है। कुछ क्षेत्र वाले तो 9 बजे दुकान, 8 बजे दुकानें बंद करके चले जाते हैं।
यमुनानगर के 10-10, 11-11 बजे तक। जितनी देर दुकान पे, शोरूम पे, क्लिनिक पे बैठोगे उतना पैसा कमाओगे। नौकरी में तो सुबह से लेकर शाम तक कर लो, तनख्वाह बढ़ने वाली नहीं है, तनख्वाह तो अपने टाइम पे ही बढ़ेगी। सर अब तो 10 बजे के बाद ग्राहक ज़्यादा है, जितना यूथ है वो ऑनलाइन जॉब करोगे 8 घंटे ही कर लो, 10 घंटे ही कर लो, 12 घंटे ही कर लो, तनख्वाह उतनी उतनी रहनी है। और भी कांट इंक्रीज और इनकम एज पर आवर डिजायर। जितनी इच्छा होती है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, नौकरी वाले के पास नहीं है। अच्छा, नौकरी वाले में हमेशा मिडल मैन रहेगा, उसकी इनकम तो टाइमली बढ़ती है, इतनी भी नहीं बढ़ती है मिडल मैन। हम जैसे लोगों की एक दिक्कत बड़ी है, जो जैसे इनकम लेवल है ना, 3 लेवल में मानते हैं, लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल। तो कहने को लोग ये बोलते हैं जो सुखी है ना, वो 2 ही लेवल के हैं, या तो अमीर या गरीब। अमीर के पास बहुत पैसा है और गरीब अपना रोज कमाता है, रोज खाता है, आराम से रहता है। दुखी कौन सा? मिडिल लेवल के होते हैं। अब इनके दुखी होने के कारण भी आप देख लीजिए। किसी ने कहा, दोस्त ने कहा, यार मैंने गाड़ी लेके आया। अच्छा, कौन सी गाड़ी ली है? कि मैंने 24 लाख की गाड़ी ली है। अच्छा, इसमें खास क्या है? इसकी माइलेज बड़ी अच्छी है। 24 लाख खर्च कर रहा है, फिर भी माइलेज देख रहे हैं। मिडिल लेवल लोग की सोच है ये, हमारे भी है। घर वालों को खुश करने के लिए कहा गया है, किसी बच्चे ने या बीवी ने कह दिया कि आज ना होटल चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं, होटल चलेंगे। पहले मन मार के तो बोलेगा होटल चलेंगे, बच्चे भी फिर नीचे पापा चलते हैं होटल में जाके फिर बाकी लोग मेन्यू की तरफ देखते हैं, वो बेचारे देखते हैं कौन कौन सा ऑर्डर करते हैं। ग्रीन प्लेटर जिससे मुझे चिढ़ है, अब तो कुछ नहीं, उसमें महंगा बहुत है। तो मैं कंडीशन लगा देता हूँ, यार ये ग्रीन प्लेटर नहीं खाते। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता, वर्थ नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, उसके बाद खाने का मजा नहीं आता। तो बेचारा जो फादर है वो तो बिल की तरफ देख देख के सूखा जा रहा है। बच्चे मंगा रहे हैं, कोचिंग को भी मंगा रहे हैं, ये भी मंगा रहे हैं, वो भी मंगा रहे हैं। बीवी ने कह दिया अब गर्मी बहुत हो रही है, एसी लगना है, चलो लगवा लो। 2 तो लगने चाहिए। अरे नहीं नहीं, 1 लगाए, बिजली का बिल ज्यादा आएगा। एसी लगवा रहे फिर भी बिजली के बिल के लिए रो रहे हो, गाड़ी के लिए माइलेज के लिए रो रहे हो, होटल गए खाओ ऐश करो, लेकिन मिडिल मैन नहीं कर रहा था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं, कितने अमीर नहीं बनते। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि मेरे दोस्त हैं, +2 पास है, ठीक है ना, ग्लास फैक्ट्री लगा रखे हैं, उनका घर हमारे से 1.5 गुना है, गाड़ियाँ हमारे से ज़्यादा, मेरे पास 2 हैं तो उनके पास 6 की गाड़ी है। इतना अच्छा घर बनाया उससे। कई बार मैं सोचता रहता हूँ कि बातें करते रहते, वो कहते हैं आप सुखी हो, मैं बोलता हूँ आप सुखी हो। वो कहता है डॉक्टर साहब आपको चिंता ही नहीं है, आपकी पेंशन भी है, सारा कुछ होता है। मैं क्या, पेंशन मिलेगी बुढ़ापे में, और बुढ़ापे वाले जो रिटायर्ड प्रोफेसर है वो बोलते हैं कि समय ऐसा भी आएगा, पैसा तो होगा लेकिन इच्छाएं मर चुकी होंगी, ना खाने को मन करेगा ना पहनने को, फिर उस लाइफ में क्या करेगा? तो जो ऐसे अगर देखो दुनिया में अगर अमीर बनना है 2 ही तरीके हैं, या तो एंटरप्रेन्योर बन जाओ या इन्वेस्टर बन जाओ, तीसरा कोई रास्ता नहीं। जितने भी अमीर, मैं पॉलिटिकल लोगों की बात नहीं करता, गलत तरीके से पैसे कमाने वालों की बात नहीं करता, ये अमीर तो ये भी, जितने भी गैंगस्टर्स थे जिन्होंने अवैध रूप से पैसा कमाया था, तो यूपी सरकार ने उदाहरण दिया है, बुलडोजर सबकी गिरा दिए गए। अगर सही मायने में अमीर बनना है, एंटरप्रेन्योर ही अमीर है या इन्वेस्टर अमीर, वार्ड जैसे लोग। और रेगुलर इनकम फॉर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, टिल रिटायरमेंट। 60 साल तक गवर्नमेंट जेलेगी, इसके बाद नहीं झेलती है। और 60 साल के बाद आपके खर्चे बढ़ रहे, इनकम आती है, 50% पेंशन मिलती है, जो ओल्ड पेंशन है, नए वालों को तो वो भी नहीं मिलती है। ये जॉब के डीमेरिट्स नहीं है, ये फैक्ट हैं जो हमें सोचने ही पड़ेंगे, ये रियल फैक्ट है। तो जो बच्चा सरकारी नौकरी करना चाहता है तो दिमाग में रखे कि ये भी है। और स्ट्रगल टू स्टे, constantly worrying about the possible future financial problems, जिसमें जिस बात को लेके घर में लड़ाई रहती है, आर्ग्यूमेंट्स रहती है, वो बच्चे भी बोलते हैं आज में जियो, ठीक है ना। जब मैं बोलता हूँ कि नहीं मुझे ना इंस्टॉलमेंट भरनी है, मुझे प्रीमियम भरना है, मुझे ये करना वो करना है, वो बोलते हैं कि आप फ्यूचर के लिए तो उतने वो आप प्रेजेंट में क्यों नहीं जीते। मैं उदाहरण देता हूं कि माँ जब बेटे को गोद में तो लेती है,
बाप कंधे पे क्यों बैठा, माँ गोद में बैठाती है, बाप कंधे पे क्यों बैठाता है? आप देखिए कि अगर बच्चा गोद में है, माँ की गोद में है, तो कितना देख सकता है, वो कहाँ तक देख सकता है? अगर वो कंधे पे बैठा है तो वो दूर तक देख सकता है। तो माँ बच्चे का प्रेजेंट स्कोर करती है और फादर बच्चे का फ्यूचर स्कोर करता है। और यही लड़ाई करते रहते हैं मिडिल लेवल के लोग कि फाइनेंशियल क्राइसिस ना जाए। वैसे बच्चों को मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए या इंश्योरेंस करवा लो, बहुत रिस्क है, अनसर्टेन लाइफ है, कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया। तो इसी वो डेढ़ घूमने लगे रहते हैं जो जॉब करते हैं। ऑक्यूपेशनल स्लेवरी मींस कोई डिसाइड करेगा आपका लाइफ स्टाइल, आपके वर्किंग और कोई और डिसाइड करेगा। स्कूलों में आप देख लो ना, स्टूडेंट्स की भी ड्रेस है, टीचर की भी ड्रेस है। मैडम बेचारी जो मन चाह पहन नहीं सकती, अच्छा खा ही नहीं सकती है। और मुझे तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की जैसे बात कर लेता हूँ कि मुझे जुम्मा ज्वाइन करनी हुई तो नौकरी 2-3 दिन हुए थे, DAV कॉलेज से डोरा ज्वाइन किया था और हमारे प्रिंसिपल थे दिया आदिल सर। वो कुरुक्षेत्र से आते थे, सर्दी का मौसम था, जनवरी में मैंने ज्वाइन किया था। तो 9:40 में मुझे क्लास दे दी गई है। तो शुरू में एडजस्टमेंट नहीं हुई, ना बसेस का पता था। तो तीसरे चौथे दिन प्रिंसिपल ने मुझे कहा था या तो टाइम पे या अपने घर जा। आप सोच के देखो कितना बुरा लगा होगा। या तो टाइम पे आओ, नहीं तो अपने घर जाओ, कोई जरूरत नहीं है। आई फील वेरी बैड, बट मुझे तो नौकरी चाहिए थी, तो ये भी सुन लिया, सुनना पड़ेगा। एम्प्लॉयर पे बात सुननी पड़ेगी। घर में आपके नौकर आता है, कैसे बोलते हो नौकर से, क्या कर लेगा चाहे मजबूरी। और नो ऑक्यूपेशनल लीव है सबसे बड़ा डिमेरिट्स, पर्सनली सोचता हूँ इसका ये। मैं प्रोफेसर ही तैयार होगा, क्या यूनिवर्सिटी मेरे बेटे को प्रोफेसर बना देगी? उसको तो जीरो से शुरू करना पड़ेगा। आज यही तो चिंता है 50 साल की उम्र में कि बच्चों का क्या होगा। हम कहने के तो हैं, बाहर वाले तो लोग बोलते हैं प्रोफेसर का बेटा, प्रोफेसर का बेटा। अब उसके बाद क्या होगा 60 साल के बाद? तो कोई लीगेसी नहीं है। काश उस समय कोई दुकान ही खोल लेते या कुछ काम और काम कर लेते। SEO का कंसेप्ट था नहीं उस समय पर, कुछ और काम कर लेता तो कम से कम उस समय, अगर आज मेरी टर्नओवर 20 लाख होती तो अपने बेटे को कहता 20 लाख का तो जुगाड़ मैंने कर दिया, अब आगे तो चला 2 दुकान कर 3 दिमाग कर। लेकिन आज तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि कुछ है जिनको सरकारी जॉब चाहिए तो वो बात ध्यान में रखें, लेकिन करे तो करे। अच्छा जीवन तो सब ने जीना है, सब चाहते हैं क्वालिटी लाइफ जिए। क्वालिटी लाइफ की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। क्वालिटी तो हमारे मुंह पर चले। तो आज तक का डाटा आपने देख लिया, सरकारी नौकरी का हाल देख लिया। अगर सरकारी नौकरी आपके दिमाग में है तो ये फैक्ट्स भी ध्यान में रखना कि नहीं है सरकारी नौकरी नहीं, तो फिर करें तो करें क्या? एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर है इंडिया में। गवर्नमेंट जॉब, कॉर्पोरेट जॉब, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट के बाद एग्रीकल्चर का नाम आता है। एग्रीकल्चर में कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो थोड़ा ऑक्यूपेशन, रेप्यूटेड ऑक्यूपेशन बना दिया गया सरकार ने। ऐसा था तो नहीं, लेकिन बना दिया गया। जमींदार करें तो क्या करें? आपने देख लिया 2-3 साल पहले जो हाल हुआ, और हाल अभी क्या हो रहा है। एग्रीकल्चर जो है वो घाटे का सौदा है, इसलिए यंगस्टर जो है वो नहीं जाना चाहते। तो फिर कहाँ जाओगे भाई? एंटरप्रेन्योर्स बनना। एंटरप्रेन्योर मैंने अभी बताया, एंटरप्रेन्योर बनने की कोई उम्र नहीं होती, कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती, कोई फैमिली बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती। क्यों? एंटरप्रेन्योर का देखो कंसेप्ट, देखो लार्जेस्ट सेक्टर्स है आज की डेट में। दिसंबर 24 का डाटा है कि MSME सेक्टर ने 24 करोड़ लोगों को रोजगार दे रखा है। और एक स्टार्टअप का कंसेप्ट 2015 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री जी ने, तो 17.8 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब दे रहा है। और आज के दिन IT सेक्टर्स, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस, प्रोफेशनल सर्विस, फूड एंड डिलीवरीज एंड एजुकेशन में तो कमाल का स्कोप है स्टार्टअप का। इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट को आप छोड़ दो। एंटरप्रेन्योर का एक सीधा सा मतलब लो, जो हमारा पीटर ड्रकर है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट से, इसने एक सीधी सी बात कही है। Entrepreneur is one who always search for the change and respond it to and exploit it as an opportunity। जो अपनी आंखें कान खुले रखता है, ठीक है ना, और जो देखते हैं कौन से चेंजेस चले हुए हैं
उनके बारे में सोचता है, उनको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है, सोर्स एलोकेट करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस दे देता है। सेकंड एग्जांपल एंटरप्रेन्योर्स का, मतलब जो नया सोचता है वो एंटरप्रेन्योर्स है। अच्छा, एंटरप्रेन्योर्स डोंट गेट इट कंपेयर विद द बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर अलग है, बिजनेसमैन अलग है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ। एक व्यक्ति ने 20 रुपए का या 40 रुपए का, मतलब 400 रुपए का कोई वाटरमेलन मार्केट से परचेज किया, उसने वो 60 रुपए में बेच दिया, 10 रुपए मैंने प्रॉफिट कमा लिया। एक दूसरे व्यक्ति ने वाटरमेलन को परचेज किया, 50 रुपए का परचेज किया, एक टेम्परेरी सा सेटअप बनाया, बैठने की व्यवस्था की है, एक जो क्या बोलते हैं मिक्सी बोलते हो, ग्राइंडर बोलते हो, जूसर बोलते हो, उसने वाटरमेलन से जूस के 5-6 गिलास तैयार किए, हर एक गिलास को उसने 30 रुपए में बेच दिया। 6 गिलास है तो 180 रुपए। अब इनमें एंटरप्रेन्योर कौन हुआ? जिसने जूस बेचा। बिजनेसमैन का तो पैट साइड है कि मुझे तो 10% चाहिए बस। वो बिजनेसमैन है, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं करता। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, तेज गति से जो काम करता है वो एंटरप्रेन्योर करता है। देखो वाटरमेलन लिया, जूस बनाया, 30 रुपए का गिलास बेच दिया, वो एंटरप्रेन्योर वो है चेंजेस का। आप एग्जाम्पल अगर आपको देखें, ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन इनकी जो स्टोरी है वो हमसे कहीं मिलती जुलती है। प्रतीक दोषी एंटरप्रेन्योर कौन बनता है? जो हमेशा ही कुछ नया करने की सोचता है। प्रतीक दोषी जो है, ये एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था मुंबई में। बारिश के दिनों में ये लोकल ट्रेन के लिए इंतजार कर रहा था, बारिश में ये बैठा हुआ था, ठीक है ना। लोग बारिश से बचने के लिए इधर उधर जा रहे थे, लेकिन ये कुछ और सोच रहा था। इसके दिमाग में एक आइडिया आया, ये सारे जो लोग छाता ले रहे हैं ब्लैक क्यों है? सारे ब्लैक छाता लेके चलते हैं। उस समय में ब्लैक ही मिलता था। किसी के पास कलर्ड छाता क्यों नहीं है, प्रिंटेड छाता क्यों नहीं है? वो कंसेप्ट इसने उठाया, घर वालों से डिस्कस किया। घर वालों ने मीन्स दैट फर्स्ट टाइम तो रिएक्ट किया गया, तेरे को पढ़ाया इसलिए ताकि छाते बेचेगा, छाते बेचने का काम है तेरा। लेकिन बाद में इसने फिर अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि नहीं, मीन्स दैट कन्विंस करने का तरीका जो 3 इडियट पिक्चर का, जैसे आप अपने बाप को जाके कहते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप जो मैं आपको कहता रिस्पेक्ट से आपको दें, चाहे छोटा घर ही छोटी गाड़ी को बनाना, वो बड़ा अच्छा तरीका है पेरेंट्स को बनाने का। इसने भी पेरेंट्स को बनाया, इसने भी डिजाइनर से कांटेक्ट किया कि यार मैं डिजाइनर छाते बना रहा हूँ। पहले डिजाइनर को भी लगा तो उसने सुजेस्ट किया कि कैन बी, हो सकता है। तो मुंबई में डिजाइन तैयार किए गए जो वहाँ के फेमस प्रोडक्ट्स थे, इसी छाते में बड़ा पाव बना दिया गया, स्माइली बना दी गई, अच्छे अच्छे डिजाइन बना दिए गए, ठीक है ना। आज छात्रों ने ये आई में भी रॉन्ग, लेकिन ये कह देते हैं कि लड़कियों को पिंक कलर का